بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اور ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو، ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو، مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو، عقیدے میں اگرچہ پختگی ہے، مگر پھر بھی ہر لمحہ زباں پر یا نبی ہو، اور ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل۔ ابھی تک جس نے سبحان اللہ نہیں کہا اس مصرے پر ضرور کہے گا کہ ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، اگر مشکل کشا مولا علی ہو، ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، اگر مشکل کشا مولا علی ہو، اور حیات جاوداں گر چاہتے ہو، حیات جاوداں گر چاہتے ہو، تو پھر ذکر حسین ابن علی ہو، اور اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو، اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو، جہاں لکھا ہوا غوث جلی ہو۔ جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی عرفان ملک صاحب کو، حاجی محمد نعمان صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ کہ جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت کے لیے اس پروقار عظیم الشان اور فقید المثال محفل نعت کا ذکر کا اہتمام کیا ہے۔ ایصال ثواب ہے ان کے والد مرحوم مغفور حاجی عبدالرؤف ملک صاحب مرحوم مغفور، اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو پڑھا ہے، اور صلاۃ و سلام تک جو بھی پڑھا جائے، آج اس کا ثواب نذر کرتے ہیں حاجی عبدالرؤف ملک مرحوم مغفور کی روح کو، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ ابتدا میں ہی کثیر تعداد میں آقا علیہ السلام کے چاہنے والے الحمدللہ کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور ذوق و شوق کے ساتھ موجود ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ذکر سن رہے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ مجمع میں زیادہ نوجوان لوگ ہیں، بزرگوں کی سرپرستی بھی ہے، بزرگوں کے ہونے سے محفل میں رونق رہتی ہے، بزرگ موجود ہوں تو رونق رہتی ہے، اور نوجوان موجود ہوں تو جوش اور جذبہ رہتا ہے۔ تو یہ دونوں کیفیات
आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की महफिल का हिस्सा हैं, जिनसे हमें हिस्सा लेना चाहिए। आज इस महफिल से फ़यूज़ व बरक़ात के लिए हम हाजिर हुए हैं, और सिर्फ मुझे या नात खानों को पढ़ना नहीं है, बल्कि आप सबको आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की इस महफिल में सुनना भी है और पढ़ना भी है। फ़र्क मिटा दीजिए पढ़ने वाले और सुनने वाले का। इस तरह दुरूद पढ़िए, इस तरह दुरूद पढ़िए कि इस यकीन के साथ पढ़िए कि हम यहाँ से पढ़ते हैं, सरकार वहाँ पर समाअत करते हैं। एक मर्तबा मेरी गुजारिश पर, ताकि मैं भी सवाब में शामिल हो जाऊं, मेरी गुजारिश पर दुरूद पाक तवज्जो के साथ आंखें बंद करके कि इसका अज्र, और फिर सलातो सलाम तक, इस शब्द के आखिर तक सुबह फूटने से पहले पहले जो भी पढ़ा जाए आज ईसाले सवाब किया जाए। हाजी अब्दुल रऊफ मलिक साहब की रूह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाजिरी को, पढ़ने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आंखें बंद हों यकीन के साथ। आज शब जुमा भी है, और जुमे के दिन सरकार की बारगाह में कहा गया कि जो दुरूद पढ़ा जाता है सरकार उसे खुद समाअत फरमाते हैं। बिगड़ी बन जाए अगर गुंबदे खजरा से जवाब भी आ जाए। सल्लु अलल हबीब सलातो वस्सलाम। दुरूद पढ़िए ऊंची आवाज से एक मर्तबा, ताकि दिल को ठंडक पहुंचे। ये माहौल आज साजगार है सरकार के जिक्र के लिए, इतना साजगार है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसे लगता है, कभी आप ऐसे मौसम में कभी मदीने पाक गए हैं? तसव्वुर करें कि आप गुंबद खजरा के सामने हों और हवाएं गुंबद खजरा को बोसा देने का शर्फ हासिल करके लौट रही हों, और इस तसव्वुर के साथ दुरूद पढ़िए। दुरूद तवज्जो के साथ पढ़िएगा, इसलिए कि कुछ भी पढ़ें तवज्जो जरूरी है, कुछ भी पढ़ें तवज्जो जरूरी है, लेकिन जब दुरूद पढ़ें तो तवज्जो इंतहा पर होनी चाहिए। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आका के दीवानों, ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं। आप नमाज पढ़ते हैं ना? सभी पढ़ते होंगे, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, सभी यकीनन सब पढ़ते होंगे। और 4 रकात नमाज पढ़ें तो 2 रकात के बाद आपको अत्तहियात में तशहुद पढ़कर, अत्तहियात पढ़कर फिर हुक्म है कि खड़े हो जाओ। ऐसा ही है, दुरूद पढ़े बगैर खड़े हो जाओ। हाँ, और अगर आपने अत्तहियात के बाद दुरूद पढ़ लिया और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद तक आप पहुंच गए, जबकि आपको खड़ा होना था, तो याद रहे आप पर सजदा साहब लाजिम आ जाएगा। सही कह रहा हूं मैं? हाथ खड़ा करें जो कह रहा है मैं सही कह रहा हूं, जिसे पता है कि नहीं? उलमा यहां पर तशरीफ फरमा है, अगर आप अत्तहियात के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद तक पहुंच गए तो अब आप पर सजदा साहब लाजिम आ जाएगा। गो कि आप खड़े भी हो जाएं, लेकिन फिर भी सजदा साहब 4 रकात के बाद अदा करना होगा, उसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होगी। आपने दुरूद पढ़ लिया, पढ़ना नहीं था, तवज्जो। मुझे उम्मीद है मैं
कोई बहुत खुशफहमी का शिकार नहीं हूं कि मैं पूरे मजमे से मुखातिब हूं, लेकिन कुछ साहिब दिल लोगों से जरूर मुखातिब हूं। मैं ये बात करते हुए मैं आपकी फरमाइशें पूरी करूंगा, लेकिन ये बात मेरी जरूर सुन लीजिए। ये मुझे दुरूद से याद आ गई। आप दुरूद पढ़कर खड़े हो गए, दुरूद पढ़ना नहीं था, लेकिन आपने भूल कर दुरूद पढ़ लिया। अब आप खड़े हुए, हज़रत इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि अब सजदा सहव लाजिम आएगा कि आपने भूल कर दुरूद पढ़ा। तवज्जो कीजिएगा, हज़रत इमाम अबू हनीफा के ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए। फरमाया, अबू हनीफा, तुमने मुझ पर दुरूद पढ़ने वाले पर सजदा सहव लाजिम कर दिया। मुझ पर दुरूद पढ़ने वाले पर सजदा सहव लाजिम कर दिया। हज़रत इमाम अबू हनीफा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दुरूद पढ़ने वाले पर नहीं बल्कि भूल कर दुरूद पढ़ने वाले पर सजदा सहव लाजिम किया है। भूल कर दुरूद कहा गया, जब दुरूद पढ़ो तो भरपूर तवज्जो से पढ़ो, भरपूर तवज्जो होनी चाहिए। ये दुरूद एक ऐसी इबादत है जो तवज्जो मांगती है। और मैं उलमा की मौजूदगी में एक जुमला कह रहा हूं, अगर इनकी तरफ से सुभान अल्लाह मिल जाएगी तो मुझे लुत्फ आएगा। जो भूल कर दुरूद पढ़े और जो दुरूद तवज्जो से न पढ़े, उसका खमियाजा सजदे की सूरत में भुगतना पड़ता है। उसका खमियाजा सजदे की सूरत में भुगतना पड़ता है। इसलिए दुरूद पढ़ें, इस तरह पढ़ें कि जिस तरह पढ़ने का हक होता है। आंखों को बंद कीजिए इस ख्याल के साथ कि मकीन गुंबद खजरा समात कर रहे हैं। आज शबे जुमा है, मोहब्बत के साथ सल्लु अलल हबीब। एक शेर मुझे पढ़ना है, बस एक शेर, और ये शेर ऐसा है कि इसे सुनकर पत्थर भी सुभान अल्लाह कह उठते हैं कि अंजुम की ज़ौ न शम्सो कमर का ज़हूर था। अंजुम की ज़ौ न शम्सो कमर का ज़हूर था। अंजुम की ज़ौ न शम्सो कमर का ज़हूर था। अरे आंखें भी जब न थी तो मोहम्मद का नूर था। आंखें भी जब न थी तो मोहम्मद का नूर था। अंजुम की ज़ौ न शम्सो कमर का ज़हूर था। आंखें भी जब न थी तो मोहम्मद का नूर था। रिवायत में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कायनात में कुछ भी ना था, कुछ भी ना था, सिर्फ रब था, सबसे पहले मेरे और आपके आका के नूर को पैदा फरमाया, नूरे मोहम्मदी को तख्लीक फरमाया। अंजुम की ज़ौ न शम्सो कमर का ज़हूर था। आंखें भी जब न थी तो मोहम्मद का नूर था। आंखें भी जब न थी तो मोहम्मद का नूर था।